So students, today we are going to cover this, take up this chapter, that is marketing management, one of the most important chapter from your B part, and the marks what is being allotted to this as per the board is one of the highest, I'll say, and this is one of the most lengthiest chapter as per the your book, your that is chapters like from the NCERT, right? So let's start with this marketing management. See, we have done with the financial management. We have done now going with the marketing management. These are the specified fields basically you're going to come across when you get into your specialization with the MBA, and like HR का आपका है specialization या marketing का specialization है, sales specialization है, तो lots of specialization people do in the your final stage basically when they go for the post graduations basically, and this is one of the, you can say, the hottest you can say profile which maximum students try to take up because of reason the package of this profile is always very higher as compared to the others. I'm not saying the others are not good or others are not having that much good salary. All are having it, but in general, if you see, on an average, the marketing guys always have a like advantage that this is only that they used to get a higher pay skill salary than the others one. But anyhow, let's start with this marketing management, and in this we are going to discuss about the what is marketing management, what are the marketing mix in this basically, and we'll go with the what are the different detailings about their branding, then about the advertisement, then sales promotion, a lot of things in this channel under the marketing mix we are going to go through. So let's start with the first with the what is market. What is the topic? Market basically. The first topic it refers to a place where the buyers and seller meet and conduct buying and selling activity. See, the market, as per the definition, it is a place. But nowadays, if you see, as per the virtuality, the virtual life, we'll see. Virtual life means like marketing can be done virtually also on the net. Like I'm sitting here at my home, and I can do any purchasing and selling whatever I want to do through here itself and through the virtual means, that is from the internet. So this is also a market. अगर देखा जाए, लेकिन मार्केट पहले क्या था, कैसा होना था, एक पर्टिकुलर जगह जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते थे और वहां से जो सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है वो म्यूचुअल कंसेंट्स पे करते थे. तो इन ट्रेडिशनल सेंस द मार्केट मीन्स अ प्लेस. तो ट्रेडिशनल सेंस में क्या है, मार्केटिंग जगह का नाम है where buyers and sellers gather to and enter into transaction involving the exchange of goods and services. But today business can be conducted on telephone, through mail, through internet, etc. It's a virtual market now. So in modern marketing sense of term, market has a broad meaning. It refers to a set of actual and potential buyer of products or services. Potential buyer, set of actual and potential buyer. Of potential means those who have the potential to buy the product. They have not bought the product yet, but they can buy, and they are supposed to buy in the coming time. So that is potential buyer or of the products and services. So market has now the definition of the market is now wide enough now, not as narrow as what was the traditional market was earlier. जो traditional था वो आपका एक जगह को कहते थे, अब market एक broaden उसको कहा जा रहा है virtually. Now, who is marketer or seller? The second point. A customer is the seeker of satisfaction of the marketer, is the provider of satisfaction. See, marketing में ये बात कही जाती है कि we are not buying product or services, or we are not selling product or services. हम product और services बेच नहीं रहे और product वो services खरीद नहीं रहा. हम जो बेच रहे हैं वो satisfaction बेच रहे हैं और वो जो खरीद रहा है वो satisfaction खरीद रहा है. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो बेचते हैं वो सेटिस्फैक्शन अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपका रिपीट डिमांड या रिपीट आपका ट्रांजैक्शन के लिए आगे नहीं आएगा. इट कैन बी वन टाइम ट्रांजैक्शन, राइट? नाउ दैट मार्केटर सेलर इज अ कस्टमर इज द सीकर. सीकर मींस उसको चाहिए क्या? सेटिस्फैक्शन. द मार्केटर इज द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फैक्शन. द ब्यूटी ऑफ दिस डेफिनेशन यू सी, वी आर नॉट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वी आर नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. कस्टमर इज बाइंग द सेटिस्फैक्शन. आपने 10 रुपए का पेन खरीदा तो
तो 10 रुपए का पेन का वर्थ आपको नजर आना चाहिए। 10 रुपए का पेन से आप लिख तो रहे हैं, लेकिन इसका वर्थ 2 रुपए के पेन के बराबर भी नहीं है, तो यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड विद द मनी व्हाट यू स्पेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स व्हाट यू हैव टेकन। तो मेन कहां पे आता है कि द अमाउंट व्हाट यू स्पेंट एंड द वैल्यू व्हाट यू जनरेट एज अ सेटिस्फैक्शन, तो वो आपका बराबर होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो इट विल गिव्स यू अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, यू विल फील कंटेंटेड एंड ऑटोमेटिकली आपका ये रिपीट डिमांड होगा, या आगे उस चीज को आप प्रमोट करेंगे। खुद नहीं लेंगे तो दूसरे को बताएंगे यार ये पेन ले ले, बहुत अच्छा है। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक ऑटोमेटिकली प्रमोशन करता है अगर आपका क्वालिटी या वैल्यू ऑफ मनी आपको मिलता है। ठीक है ना। चलिए, marketer can be a person or an organization who makes available the product or services and offer them to the customer with an intention to satisfying the customer needs and wants. देखिए, this is very very important word. सेलिंग में और मार्केटिंग का डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस अगर कोई है तो यही है। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं सेलिंग को कि सेलिंग एंड मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट है या एक ही चीज होता है। नो, सेलिंग एंड मार्केटिंग आर नॉट द सेम थिंग। सेलिंग इज जस्ट टू सेल irrespective that there is a need or requirement with the customer is there or not, उसको जरूरत है या नहीं है, हमें तो उसको वो प्रोडक्ट चिपकाना है, उसको दे देना है, उससे पैसा आ गया, भाई आप अपने घर में, मैं अपने घर में, राम राम, कोई मतलब नहीं उससे। वो दोबारा आएगा नहीं आएगा, आपने खराब दे दिया, अच्छा दे दिया, दैट इंटेंशन इज टू सेटिस्फाई। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस यही है। सेलिंग में आप कैसे भी प्रोडक्ट को बेच दीजिए, उसकी जरूरत है या नहीं है, उसका जितना भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट चार्ज करिए उसको, बस उसको बेच दीजिए आप। उसकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की खराब है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, डजंट मैटर। लेकिन मार्केटिंग का मतलब है टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर कस्टमर शुड कम बैक टू यू, इट शुड बी रिटेन्ड टू द मैक्सिमम स्ट्रेच लेंथ सच दैट द कंपनी कीप ऑन enhancing or keep on increasing the profit in the coming future. आप देख लीजिए एग्जाम्पल लाइक पार्ले जी, एग्जाम्पल आई एम गिविंग पार्ले जी, सिंपल ग्लूकोज सेगमेंट का बिस्किट है, बट वर्ल्ड हाईएस्ट सेलिंग बिस्किट है। उसका सिर्फ एक रीजन है, द क्वालिटी व्हाट दे हैव मेंटेन्ड। माय फादर हैज ईटन दैट, आई हैव ईटन, आई एम ईटिंग एंड आई एम हैविंग द सेम सेटिस्फैक्शन। आज माय सन इज आल्सो ईटिंग द सेम थिंग बट ही इज आल्सो हैविंग द सेम। तो ये अभी तक 3 जनरेशन को सेटिस्फैक्शन वही मिल रहा है। टेस्ट में चेंज नहीं है, पैकेजिंग में छोटा मोटा चेंज किया है, ज्यादा नहीं, वो बिकॉज ऑफ द टू कीप इट मोर यू नो सेफ एंड कीप इट मोर यू नो इट शुड नॉट गेट सॉगी एंड ऑल, उसको अच्छा सा बना दिया, थोड़ा सा ब्रांडिंग कर दिया बोल्ड वोल्ड करके, अदरवाइज इट इज हैविंग द सेम टेस्ट, नो चेंज। तो मार्केटिंग में क्या होता है, सेटिस्फैक्शन इज प्राइम। अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है तो ही विल ट्राई टू प्रमोट द प्रोडक्ट to 10 customers. If it is a dissatisfied customer, then he will demote your product to 100 people. अगर वो खुश है तो कस्टमर सेटिस्फाइड है तो 10 लोगों को जरूर बताएगा, ऐसा माना जाता है। और अगर वो डिससेटिस्फाइड है, वो डिसकंटेंटेड है, वो नहीं समझता कि वो, उसको लगता कि इट इज नॉट अ वर्थ बाइंग द प्रोडक्ट, वो 100 लोगों को बताएगा। तो इससे नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट किसी कंपनी का नहीं। सो मार्केटिंग एंड सेलिंग आर डिफरेंट। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग? Marketing is a social process whereby people exchange goods and services for money, offer something of value to them. Anything that is of value to other can be marketed. देखिए, आज के डेट में कोई भी चीज हम मार्केट कर सकते हैं, कोई भी सर्विस हम मार्केट कर सकते हैं, राइट? You see the you on YouTube, YouTubers who are selling who are just telling you about the product, और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज ऑफ दिस गुड एंड ये टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी है, ये है, आप इसको कंपैरिजन दे दिया, उन्होंने रिव्यू दिया अपना, दैट्स इट, दे आर ओनली गिविंग द रिव्यू, दैट्स इट। आप देखते हैं उसको, इतने बहुत सारे जो यूजर्स है देखते हैं और उसके वजह से उनको पैसा मिल रहा है। दे आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट, दे आर जस्ट टेलिंग यू द रिव्यू ऑफ द कार, रिव्यू ऑफ द योर मोबाइल, रिव्यू ऑफ द कंप्यूटर्स, रिव्यू ऑफ द लैपटॉप्स, अदर गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके ऊपर हो गया। जिसको खाना बनाना आता है वो खाना बनाना सिखा रहा है खाली, कि कैसे आप अच्छे से अच्छा खाना बना सकते हैं। जिसको जरूरत है उस चीज की, वो लोग उसको देख रहे हैं। अगर आप देखें कोविड के 2 सालों में, तो सबसे ज्यादा अगर कोई वीडियो देखे गए हैं तो वो देखे गए हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दैट, खाने का वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया।
उसके बाद जो देखा गया वो टेक्नोलॉजिकल देखा गया कि भाई हाउ टू टीच ऑन, बिकॉज सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पढ़ाने की थी. सो हाउ द स्टूडेंट्स कैन बी टॉट फ्रॉम द कंप्यूटर्स, फ्रॉम द इंटरनेट, ऑनलाइन. तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस था. सो तो फिजिकल प्रोडक्ट्स, टीवी, मोबाइल फोन, सर्विसेज, इंश्योरेंस, एजुकेशन, पर्सन, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोस्ट, राइट, प्लेस विजिट, आगरा, ताजमहल. आप टूरिज्म को आज मार्केट कर रहे हैं हम लोग. आप देखिए बहुत सारे आप देखेंगे ब्लॉग्स देखेंगे बेसिकली क्या है वो, दे आर जस्ट टेलिंग कि आप जयपुर आ रहे हैं, जयपुर में कैसे कैसे आप कहाँ घूम सकते हैं, कितने कम रेट में घूम सकते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए. आज मैं भी कहीं जा रहा हूँ, किसी कंट्री में जा रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहा हूँ, तो मैं उसके वहां के रिव्यूज या वहां के यूट्यूब से जब चीजें देखता हूँ, अच्छा ठीक है जयपुर में ये पर्टिकुलर जगह पे कचौड़ी इज वेरी गुड, या ये ट्रेडिशनल खाना वहां पे बहुत अच्छा है, तो लोग वहां पे स्पेशली जाते हैं क्योंकि दे आर सीइंग द रिव्यूज, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, दे कमिंग देयर फॉर एंजॉयमेंट, एंड उनके पास 3 या 4 दिन है, they want to enjoy that fully with their family, so they will not experiment, they will have the all reviews and they will plan their holidays like accordingly, and this is a great help to them. लोगों को लगता है ये क्या बता रहे हैं कि जयपुर के बारे में बता रहे हैं. अब आगरा हमारा, आई एम रिसाइडिंग आगरा, अब मैं आगरा के बारे में बताता हूँ, तो फॉर मी इट कुड बी a very normal thing going Tajmahal and Lal Killa and Fatehpur Sikri and all, Sikandra and all, but the tourist who is coming from on an international level, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कौन से होटल्स में रुके, अच्छा होटल्स में, बजटेड होटल कौन सा हो सकता है, अच्छा प्रीमियम होटल कौन सा हो सकता है, कौन सा रेस्टोरेंट में वो खाना खाएगा जिससे उसको एक लाइक डेलिकेसी ऑफ इंडियन फूड है या कॉन्टिनेंटल फूड है उसको वहां से मिलेगा. तो ये सारा चीज वो अगर उसको पहले से रिव्यू क्लियर है तो वो बिल्कुल माइंड मेकअप है उसका, उसका बजट है उसके पास, फाइनेंशियल एंड अदर थिंग्स ही विल बी planned basically, and accordingly they will visit, they will have a good experience. Anyway, events, fashion show, film festival, ये these are the events basically, these also been marketed. आप देखते हैं crores and crores का बजट होता है इनका. तो ये मार्केटिंग में हमारा पास सोशल प्रोसेस एक वर्ड लिया है, ये टेक्निकल वर्ड है, इसको आप अवॉइड नहीं मत करिए, दिस इज अ गुड वर्ड, टेक्स्ट सोशल प्रोसेस. सोशल प्रोसेस क्यों है, बिकॉज व्हेन वी exchange the goods and services, we actually develop the relation. सोशल का मतलब ये है टू डेवलप द कनेक्टिविटी, डेवलपिंग द नेटवर्क ऑफ द पीपल, राइट, ये इंपॉर्टेंट. नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग, नीड्स एंड वांट, नीड्स एंड वांट. देखिए नीड्स हमें समझ में आना चाहिए, नीड्स एंड वांट, दिस आल्सो वी हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने. नीड क्या है, अ स्टेट ऑफ फेल्ट deprivation ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, जहां पे आपको एक बहुत बेसिक चीज की जरूरत है और वो आपको मिल नहीं पा रही है. बेसिक जैसे खाना खाना, तो आप खाना में चॉइसेस नहीं ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल भूख लगी है, आपको खाना खाना है, चाहे कुछ भी मिल जाए इसमें, यू आर वेरी हंग्री एंड यू वांट एनीथिंग यू शुड गेट एंड यू शुड ईट दैट. आपका चॉइसेस नहीं कर रहे उसके अंदर, है ना, तो वहां नीड है, द स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रिवेशन ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. डिप्राइव्ड मतलब आपको उस चीज से दूर कर दिया गया, उस चीज से हटा दिया गया, नहीं मिल रहा आपको चीज, नीड है आपकी, बहुत कहते हैं अर्ज है, यू हैव द अर्ज और रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको. नेक्स्ट इज वांट, देन कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट इज पोटेंशियल सेटिस्फाइड ऑफ नीड. अब आपको खाना तो मिल रहा है, लेकिन खाने में अगर आपको चॉइस मिल जाए एंड यू गेट द फूड व्हाट यू एग्जैक्टली लाइक इट, देन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वांट इज ऑलवेज मोर देन द नीड. नीड आपका रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव, यू हैव नॉट बीन गिवन चॉइस, एंड वांट में यू हैव एन अपर हैंड बिकॉज ऑफ रीजन कि उसमें चॉइस आ जाता है थोड़ा सा कि अच्छा ये बेटर, यू हैव द चॉइसेस, तो यू हैव द वांट. द मार्केटर जॉब क्या है, आइडेंटिफाई द नीड्स एंड फुलफिल देम. मार्केटर का नीड क्या है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स. ये कोर चीज से, किसी भी चीज को आपको बेचना है किसी को, तो उसकी कोर चीज समझिए कि अच्छा व्हाट एग्जैक्टली ही नीड्स. बोलना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, sometimes you have to listen to the customers more to understand the consumer or the customer what exactly he needs. उसका premises of requirement क्या, भाई हमें ना ये चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चाहिए. अब फोन बहुत सारे होते हैं, लेकिन some people buy the phone particularly because of the camera quality,
Some people buy the phone because of the voice quality. Some buy the phone because of the looks and the royalty, what it show off. तो हर का अपना एक perception है, dimension है. सारे चीजें एक में मिल जाएंगे आपको, ऐसा हो नहीं सकता. जब भी ये सारी चीजें इकट्ठा मिलेंगी वो फोन बहुत महंगा होगा. क्वालिटी ऑफ साउंड भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ वीडियो भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ कैमरा भी अच्छा है, क्वालिटी एंड वेरी गुड लुकिंग, एवरीथिंग इज फाइन, बहुत अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है, तो उसकी कॉस्ट भी अच्छी होगी, प्राइसिंग भी अच्छी होगी. तो इसलिए आपको समझना है कि जब लोग आते हैं तो उनके पास चॉइस देने के लिए, इसलिए कंपनी किसी का कैमरा अच्छा रखती है, किसी का वॉइस क्वालिटी अच्छी रखती है, डिपेंड, क्योंकि हर चीज अच्छा कर देगी तो हर फोन महंगा हो जाएगा और उसका बिकना पॉसिबिलिटी नहीं है. तो उसको कैटर करने के लिए डिफरेंट कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट रेंज, वो उसको अलग अलग लेवल पे कंपनी उसको डिफरेंशिएट करती है, प्राइसिंग पे भी. क्रिएटिंग, सेकंड पॉइंट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. कंप्लीट ऑफर, हम एक कंप्लीट ऑफर दे रहे हैं किसके, प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए. हम अगर किसी को पार्शली कोई चीज देंगे, नहीं साहब ये चीज आप ले लीजिए, आधा यहाँ से आधा वहां ले लीजिए, that is not possible. The market is a complete offering. It's a package. It's a package. आपने देखा होगा आजकल टूर्स एंड ट्रेवल में भी पैकेज है. आपको घर से लेके वहां जाने से लेके आने तक का सारा कुछ बता दीजिए. वैसे हमें घूमने जाना, टेंशन नहीं लेना. We want to go and enjoy. आप खाने में कहाँ ले जाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या कहाँ घुमाएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक ले जाएंगे, किस कन्वेंस से ले जाएंगे, किस तरह के हमें जो साइट से दिखाएंगे, एवरीथिंग यू टेल अस द अमाउंट, डेफिनेटली विल लुक इनटू इट कि वेदर इट कम्स इन आवर बजट और नॉट, एंड विल सी टू इट कि पैकेज मिल जाए हमें. तो दैट इज द कंप्लीट ऑफरिंग. कस्टमर वैल्यू, मार्केटिंग का पहला रूल है, द कस्टमर इज द किंग. मीन्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी. कस्टमर को अगर वैल्यू ऑफ मनी देंगे आप, एज अ वेंडर, एज अ seller, as a producer, automatically that customer will, or the consumer will be getting satisfied with your products and services, and they will try, tends to, this is, देखिए बहुत अच्छा हमारा वो है कि हम जब किसी चीज से खुश होते हैं, we recommend doctors. डॉक्टर हमें कोई कमीशन नहीं दे रहा. If I get is like some good doctor and he helped me a lot in getting the recovery fast, तो मैं 10 लोगों को रिकमेंड करूंगा, भाई वो डॉक्टर ले लो, बहुत अच्छा डॉक्टर. तो ये डॉक्टर को क्यों करा मैंने, क्योंकि आई वाज सेटिस्फाइड विद दिस सर्विसेज, द वे ही टॉक्स, द वे ही गिव्स द मेडिसिन, ही ट्राइज टू लिसन टू मी प्रॉपर्ली, एंड सो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे. तो कस्टमर इज डूइंग व्हाट, दे आर गोइंग फॉर द वैल्यू फॉर द मनी. एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर मनी फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम. ठीक है, यहाँ एक्सचेंज का मतलब जो है लेन देन से, यानी कि आप जब प्रोडक्ट देते हैं या सर्विस देते हैं, उसके बदले क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं डेफिनेटली, या ये जो भी एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विस के बदले, उसका जो मैकेनिज्म है, ये मार्केटिंग का मैकेनिज्म या सेल्स का मैकेनिज्म ले लीजिए, वो यही है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेट कंज्यूमर शुड बी बाइंग द गुड्स. जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको खरीदना, लास्ट में वही कंज्यूम करेगा उसको, तो उसको वो बेच रहे हैं आप, तो सेकेंडरी सेल्स होना जरूरी है. प्राइमरी सेल तो हो जाता है, यानी कि एक प्रोड्यूसर ने एक होलसेलर को बेच दिया, वो प्राइमरी सेल. सेकेंडरी सेल कब होता है, जब होलसेलर से रिटेलर पे जाता है, रिटेलर के बाद वो कस्टमर पे नहीं, कंज्यूमर पे जाता है. द वन हु इज कंज्यूमिंग द गुड्स फाइनली, इट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल. वहां से सेकेंडरी सेल आता है. तो जब सेकेंडरी सेल आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्चुअल में रिटर्न दे रहा है किसको, टू ऑल द मीडिएटर्स इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. तो ये इसको आप समझिए सेकेंडरी सेल. तो कंप्लीट एक्सचेंज मैकेनिज्म, कंप्लीट फुल्ली. खाली का प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेच दिया, ये सेलिंग नहीं है या मार्केटिंग नहीं है. दिस इज कॉल्ड डंपिंग. ये डंप कर दिया आपने होलसेलर पे, अब होलसेलर के बैठा हुआ है, बिक जाए बिक जाए बिक जाए. कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, एडवर्टाइजमेंट इसलिए करती है टू क्रिएट द पुल फ्रॉम द मार्केट. कंज्यूमर जो आपका है, जो एक्चुअल कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट को, वो जाके जब डिमांड क्रिएट करता है, मांगता है चीजों को, उससे आता है क्या, एक पुल आता है. लाखों करोड़ों रुपए कंपनी खर्च कर रही है एड पे. क्यों खर्च करती है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज द मेमोरी ऑफ द पीपल इज वेरी शॉर्ट टाइम.
वो बहुत टाइम, शॉर्ट टाइम का मेमोरी है, तो भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, when you go to any shop you find danglers and posters। चॉकलेट खरीदने के लिए कोई नहीं जा रहे, किसी के पापा चॉकलेट खरीदने नहीं आ रहे, उस ग्रोसरी खरीदने जाते, वहां चॉकलेट भी लेके आते, उन्हें याद आ रहा था अच्छा अच्छा बच्चे ने कहा था चॉकलेट ले आना। तो वहां पे वो पोस्टर देखा, सबसे पहले जहां पे कैश काउंटर, वहीं पे कैडबरी का आप देखेंगे वहां पे रखा होगा। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज द वे दे यूज्ड टू मार्केट द थिंग, राइट। सो एक्सचेंज मैकेनिज्म क्रिएट करना ये है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, आप यहां से स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स management of marketing function. It is a process of planning, organizing, directing and controlling the activities related to marketing of goods and services। देखिए जहां मैनेजमेंट आएगा वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, that is all the basic management principle will be same। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके जो आउटकम है बेसिकली ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस मार्केटिंग का मतलब है इट इज द फोकस्ड मैनेजमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड एक्टिविटी, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या इवेंट के लिए होगा। तो मार्केटिंग के लिए आपका मार्केटिंग फंक्शंस के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या स्टाफिंग जो भी कुछ है, ये ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कस्टमर्स नीड, सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड, जहां भी मार्केटिंग वर्ड आएगा उसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स जरूर आएगा। एंड सेकेंडली द ऑर्गेनाइजेशनल, अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ऐसा नहीं कस्टमर को आपने सर्टिफाइड तो बहुत कर दिया लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ही नहीं हो रहा, ऐसा होना वैसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी you have to understand that is need of the customer to be satisfied and the organizational goal will be achieved simultaneously। ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्राइम गोल है, प्राइम यू कैन से फीचर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व? फर्स्ट चूजिंग अ टारगेट मार्केट। हमारा सेगमेंट, टारगेट सेगमेंट क्या है? टारगेट का मतलब जो एग्जैक्टली वी आर लुकिंग, हमारा एक्चुअल में कंज्यूमर कौन है। If you don't know your consumer, you cannot design your product, you cannot design your services। तो आपकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड सर्विस डिजाइनिंग बेस करती है किसके ऊपर कि हम टारगेट किसे कर रहे हैं भाई, हमें देना किसको ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एन अमाउंट ऑफ क्वालिटी हो सकती है, बहुत हायर क्वालिटी लेवल का भी हो सकता है प्रोडक्ट, आपका बहुत लोअर क्वालिटी का भी हो सकता है, लेकिन आपका रेवेन्यू जनरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू जनरेशन करना के लिए क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि व्हेन वी यूज्ड टू एट आवर टाइम्स आई विल से, व्हेन यूज्ड टू बाय द कैसेट्स, हम कैसेट्स बाय करते थे, उस समय सीडीज नहीं होते थे, उस समय तो कंप्यूटर नहीं होते थे, तो हमारे ऑडियो कैसेट्स हम बाय करते थे। तो ऑडियो कैसेट HMV में आता था या और भी दूसरे ब्रांड्स में आता था, दैट वाज वेरी कॉस्टली, दैट वाज 35 रुपीज और 45 रुपीज और 55 रुपीज एंड टू 90 रुपीज बेसिकली कॉस्ट थी। तो उस समय 35 रुपीज, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हम बात करेंगे तो वो बहुत हमारे लिए महंगा चीज था। लेकिन टी सीरीज ने लॉन्च किससे किया? टी सीरीज हैड लॉन्च द कैसेट विद हार्डली 12 to 14 रुपीज। तो लोग इतने ज्यादा उसके प्रोडक्ट को लाइक करने लगे, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो था वो जो था एक लो रेंज के लोगों को काफी कवर किया, मीडियोकर एंड बिलो मीडियोकर लेवल के लोगों को उसने कैटर किया, जो जिनकी क्वांटम बहुत ज्यादा थी। और टी सीरीज कुछ सालों में इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी हुआ? बिकॉज उसने अपना टारगेट कस्टमर सही ढंग से चूज किया। तो इफ यू नो, प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेकेंडरी, सर्विस इज ऑलवेज सेकेंडरी। फर्स्ट यू चूज योर टारगेट मार्केट। द मैन्युफैक्चरर में चूज अ रेडीमेड गारमेंट अप टू एज ऑफ 5 ईयर चिल्ड्रन। अब आपको ये देखना है कि कौन सा लेवल का कस्टमर है, कौन कस्टमर है, कंज्यूमर कौन है, उसके बेस पे आप प्रोडक्ट डिजाइन करिए। सेकंड, क्रिएटिंग डिमांड एंड अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट में आपको डिमांड क्रिएट करना है, अट्रैक्ट करना है अपने कंज्यूमर्स को, जिससे वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। नाउ हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड हाउ यू आर गिविंग देम द बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी फॉर देम, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर बाय एनालाइजिंग देयर नीड्स, वांट एटसेट्रा। आप उनके वांट्स को, उनके नीड्स को, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को, डिससेटिस्फैक्शन लेवल को समझिए कि अच्छा ठीक है, उसने किसी और कंपनी का प्रोडक्ट जो खरीदा था, उसके प्रोडक्ट खरीदने से उसको क्या डिससेटिस्फैक्शन हुआ, साहब ये डिससेटिस्फैक्शन हुआ, मुझे इस वजह से दिक्कत आई, मुझे उस कंपनी के प्रोडक्ट में इसलिए इंटरेस्टेड।
अब वो उस कंपनी के प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई वो किस वजह से नहीं है, क्योंकि ही हैज गॉट सम प्रॉब्लम विद दैट प्रोडक्ट। अगर वो प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर देते हैं, उसको हम सॉल्व कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो ही बिकम्स आवर कस्टमर, वो हमारा कस्टमर बन जाएगा। तो उसी को आपको क्या करना है, मार्केट करना है। You have to create demand by marketing what? By giving them, selling them the satisfaction, the value of money. So that is what is been needed. You have to target your customer or consumer by doing that. आप देखिए इसमें सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ, जो मैं आप ऐड देखते होंगे, आई वॉच लेस टीवी सो आई डोंट, बट जो भी मैं देखता हूँ ऐड, उसमें हमेशा देखता हूँ मैं कैडबरी का, मैं हमेशा देखता हूँ चॉकलेट का ऐड जो है वो बहुत सेंसिटाइज है। उन्होंने क्रिएट किया डिमांड को, उन्होंने डिमांड को क्रिएट किया, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो रक्षाबंधन पे दे आर इनकैशिंग ऑल द इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशंस को, सारे इंडियन ट्रेडिशन को इनकैश कर, करवा चौथ पे हस्बैंड वाइफ को, रक्षाबंधन पे बहन भाई को, है ना, आपका फ्रेंड्स को, देन खाने के बाद मीठा चाहिए तो दादा दादी को भी ले आए इसके अंदर। सो दादा दादी एंड पापा मम्मी हैज नथिंग टू डू विद दिस चॉकलेट, they are not the prime customer, they are not the core customer, they could be a potential customer। उन्होंने उस एरिया में भी काम किया, क्यों किया, कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो मीठा हो जाए का मतलब क्या है भाई, खाने के बाद इंडियंस में है कि खाते हैं तो मीठा जरूर खाते हैं, तो वो जो मीठा खाने की आदत है तो क्यों चॉकलेट डाला जाए। तो उन्होंने दादा दादी को एक पोटेंशियल कस्टमर दिखाया कि इवन द पीपल ऑफ दैट एज ग्रुप कैन ऑल्सो बिकम आवर कस्टमर। उन्होंने क्रिएट किया डिमांड, भाई कंज्यूमर वही है, कस्टमर्स वही हैं आपके पास, आपने एक रेंज को खाली देखा, अच्छा हमारा कोर रेंज तो ये है कि टीनेज ग्रुप है या बच्चे हैं, ये हमारा टीम, ये हमारा कोर ग्रुप है, व्हाई नॉट हस्बैंड वाइफ, व्हाई नॉट दादा दादी, व्हाई नॉट पापा मम्मी। तो ये एक पोटेंशियल कस्टमर का रेंज बढ़ाया, मींस क्रिएटिंग अ डिमांड, राइट। नेक्स्ट, थर्ड इज क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, मेकिंग द प्रोडक्ट, मेक द प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स। देखिए सुपीरियर वैल्यू का मतलब है जो क्वालिटी है उसकी, अगर उसी वैल्यू में अगर आप क्वालिटी इनहांस कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, क्वालिटी इनहांस का मतलब ये नहीं कि आपको उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू, उसके अंदर आपको कॉस्ट आई इंकर करना है, नो, आप उसके प्रोडक्ट के शेप, साइज, उसका प्रोडक्शन उसका, इस तरह की कुछ चीजें करते हैं वो लोग, और उससे भी वो क्या कर सकते हैं, एक क्वालिटी ड्रिवन एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो द क्रिएटिंग ऑफ सुपीरियर वैल्यू, दैट इज एनहांसिंग द क्वालिटी फॉर द कंज्यूमर टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट बिटवीन द विद द कॉम्पिटिटर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि हम कॉम्पिटिटर से अलग कैसे, अलग करने के लिए, कुछ अलग दिखने के लिए, अलग आपको कुछ वैल्यू लेने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। योर क्वालिटी शुड बी, यू शुड हैव द, शुड स्पीक इन इट्स द व्हाट यू आर एग्जैक्टली मार्केटिंग। आपकी क्वालिटी बोलनी चाहिए, आपकी क्वालिटी बोलनी चाहिए, ठीक है ना। तो शर्ट सभी बेच रहे हैं, लेकिन वाई ना, वाई डिजाइनर अरमानी का ही आपको क्यों ले रहा है भाई, इसका क्योंकि उसका एक ब्रांड वैल्यू जो क्रिएट हुआ है, अच्छा, उसकी वजह से वो चीज, जो चीज 2000 रुपए की है वो आज 10,000 की बिक रही है। People are paying for what? The trust. People are paying for the trust. कपड़े की कॉस्ट उसमें कुछ भी नहीं है, people are paying for the trust, right? So that is what the you need to create superior value. Next is बेटा आपका next topic है meaning and concept of marketing and selling. Meaning and concept of marketing and selling. Marketing is a wide term. मैंने आपको बताया था marketing and selling different है दोनों, ये दोनों mix नहीं होना चाहिए, लेकिन marketing एक wide term है. It refers to the large set of activities of which selling is just one part. जिसमें से selling भी एक part है. So marketing is the, you can say, the father, and the child is, one of the child is selling also. The marketer, before making the sale, does a lot of other activities such as gathering the, analyzing the market information, doing market planning, designing of the product, price, selecting the and distribution outlets at which the same would be available. देखिए ये अपने आप में पूरा एक एक्सरसाइज है, जहां पे हम प्रोडक्ट बनाने से पहले, हम किसी चीज को लॉन्च करने से पहले उसके बारे में पूरा, उसके बारे में जो है एनालाइज करते हैं, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आप देखिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ,
अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैगी एक प्रोडक्ट हमारा है जो इंडियन फूड नहीं, इट्स नॉट इंडियन फूड, इट्स दो चाइनीज बेसिकली से, और यू कैन से द नॉर्थ ईस्ट का फूड है, जो बेसिकली इट्स नॉट बेसिकली अ प्योरली एन इंडियन। बट आज नूडल्स बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर सेलिंग द नूडल्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो किसका, मैगी का क्या है, दैट इज द मसाला व्हाट दे आर यूजिंग, एंड वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही है। बीच में मैगी वालों, नेस्ले वालों ने क्या किया था, बीच में कुछ साल पहले की बात है, जहां पे बॉयल कॉन्सेप्ट के हम मसाले ये सब नहीं देंगे, वी शुड ईट हेल्दी एंड ऑल, तो हम इसको वेजिटेबल के साथ बॉइल्ड करके इसको देंगे, मसाला वसाला हटा दिया उन्होंने। द सेल ऑफ द मैगी हैज ड्रॉप टू मिनिमम, और उनको लगा रही है तो ब्रांड ही हमारा खत्म हो जाएगा। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने दोबारा उसको रीलॉन्च किया एंड मैगी का मसाला अलग से बेचना भी स्टार्ट कर दिया। लो भाई, अब खाने में भी डाल लो, खाली मैगी के पैकेट में मसाला आएगा वो नहीं, आप जाएंगे 5 रुपए का 10 रुपए का अलग से भी मसाला मिल रहा है आज के डेट में। इफ यू आर बाइंग दैट, बच्चों को इतना वो टेस्ट पसंद है उसका मसाले का कि अगर वो खाने में भी डालेंगे, आलू की सब्जी में डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो वो उनको एक मैगी वाला जो टेस्ट है उससे ड्रिवन होके वो उसको भी खा ले रहे हैं। तो ये एक जो है एडिशनल उनका मार्केट बन गया बाय सेलिंग द मसाला। उनका मसाला ही उनका क्या हो गया, द वैल्यू फॉर दैट इज सेटिस्फैक्शन लेवल था उसके अंदर। तो ये मार्केटिंग के अंदर क्या है, दैट इज आपको यहाँ के लोग समझना पड़ेगा। इंडियंस आर नॉट मेंट टू ईट द बॉइल्ड फूड्स। हम स्पाइसी खाते हैं और बहुत स्पाइसी खाते हैं, मिर्ची मसाला सब कुछ खाते, गरम मसाले सब खाते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशनल वो है, तो हम मसाला खाएंगे या नहीं, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया, वहां के हमारे ट्रेडिशन को समझ के अगर वो मार्केट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को हम उसको ज्यादा लाइक करेंगे, हम वी गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। अदरवाइज वो सोचें कि हम फॉरेन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, अब आप देख लीजिए पिज्जा हट, पिज्जा देख लीजिए, हमारे यहाँ पिज्जा जो बिक रहा है, चाहे वो आपका पिज्जा हट दे रहा हो, चाहे आपको डोमिनोज दे रहा हो, उसमें बहुत सारे ब्रांड्स उन्होंने जो डाले हैं वो वहां पे फॉरेन कंट्री में मिलते ही नहीं है ना। वो ढाबा पिज्जा और पनीर पिज्जा, पता नहीं कौन कौन से पिज्जा डाला उन्होंने। तो दे आर बेसिकली सीइंग टू इट कि यहाँ का आदमी यार वो इतना मसाला खाता है, वो वहां पे मसाला नहीं खाते, वहां बॉइल्ड कॉन्सेप्ट में चल जाता है वो उनका, हमारा नहीं चलता। तो वो चीज यहाँ पे आप देखिएगा कितना ज्यादा उसको वो करते हैं। आपने देखा होगा वो देते हैं, चिली फ्लेक्स देते हैं वो, ठीक है ना। अब चिली फ्लेक्स जो है उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है चिली फ्लेक्स का, वो लोग पर्पसली घर में भी ले आते हैं और घर में भी खाते हैं उसको। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग के वो वहां पे सारा खत्म कर लिया उन्होंने, ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग घर भी ले आते हैं और वो घर में भी यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है, मार्केटिंग है उनका, वो भी प्रोडक्ट वो चीज जा रही है वहां मार्केट, उस पर लिखा है, उसे बना हुआ डोमिनोज बना हुआ, पिज्जा हट बना हुआ उसके ऊपर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट कि हमें प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले, प्रोडक्ट बेचने से पहले उसके नीड्स, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके वांट्स, उसके सब कुछ समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद मार्केट पूरा हमें प्लान करना पड़ेगा कि टारगेट कस्टमर हमारा यहाँ पे है, उसे हम कैसे एडवर्टाइज करेंगे, कैसे उसको हम डिमांड क्रिएट करेंगे, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, उसके सारे कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कितना क्वांटिटी रखना है, कितना क्वालिटी रखना है, क्या रखना है, वो सब। देन प्राइसिंग, राइट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी शुड बी देयर। अगर प्राइसिंग आपने ज्यादा रख दिया, कम कर दिया, दोनों ही आपके बिजनेस पे खतरनाक हो सकता है। सिलेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम अडॉप्ट करेंगे किस प्रोडक्ट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी, मेक द थिंग्स अवेलेबल टू देम एट द टाइम व्हेन दे आर बीन आस्क्ड। वो जब मांगा जाए तो वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। तो मार्केटिंग का ये पूरा कॉन्सेप्ट। सेलिंग क्या है बेटा, जस्ट सी टू इट। सेलिंग क्या है, सेलिंग refers to the sale of goods or services through publicity, promotion and salesmanship। देखिए सेलिंग यहाँ पे आता है, गुड्स एंड सर्विसेज वहां भी आ रही है, लेकिन वहां पे हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। नॉन पेड फॉर्म इज एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड पब्लिसिटी, जहां पे हमको पे ना करना पड़े और वो हमारी बात अपने आप वायरल हो जाती है, तो वो पब्लिसिटी होता है। तो नॉन पेड फॉर्म है ना। प्रमोशन हम प्रमोट करते हैं, पेड फॉर्म में प्रमोट करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं। एंड सेल्समैनशिप, सेल्समैनशिप का मतलब क्या हुआ, salesmanship means we are trying to what influence the consumer by for buying the product। हम उसको influence करते हैं। influencing I am using the word because of reason, selling के अंदर influencing है, तभी salesmanship है। हम personalize करते हैं, उसको influence करते हैं कंज्यूमर को
and we try to convince him that this product is good for you, and if you buy it, it's the best product. This is going to provide you the best of the value of money and utility to you and this and that. उसको किसी तरह भी सर्टिफाइड करना है, ये आपका सेल्समैनशिप. The title of the product is transferred from seller to buyer. Definitely, मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बेच दिया, तो टाइटल has been changed. The entire focus of selling is to convert the product into cash. तो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को जब तक हमने कैश में कन्वर्ट नहीं किया, that's what I'm saying. सेकेंडरी सेल्स, ये वर्ड ध्यान रखिए, टेक्निकल वर्ड है, आपको आना आएगा बाद में भी, आप MBA BBA करेंगे, ये सब आते हैं. प्राइमरी सेल्स में कर लेने से कोई फायदा नहीं है. आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से होलसेलर को दे दिया, होलसेलर से रिटेलर को दे दिया, दिस ऑल आर प्राइमरी सेल्स. रिटेलर पे पड़ा हुआ है सामान, बिक नहीं रहा, क्या फायदा? वो डंप हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दोबारा आपसे वो होलसेलर मांगेगा नहीं, क्योंकि रिटेलर बेच नहीं पा रहा. रिटेलर नहीं मांगेगा तो होलसेलर क्यों खरीदेगा? तो आपके मैन्युफैक्चरिंग करने का मकसद ही खत्म हो गया. तो आपका डिमांड तभी निकल के आएगा जब आपका एक्चुअल में कंज्यूमर उसको परचेज करेगा. तो दैट इज व्हाट द पार्ट, जो आपका मार्केटिंग का एक पार्ट है, सेलिंग, वो इसको क्या करता है, इन्फोर्स करता है कि हमारा सेकेंडरी सेल्स हो, एडवर्टीजमेंट करके, पेड प्रमोशन करके, पब्लिसिटी करके, किसी तरह से भी हो. ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट इज सेलिंग ऑल अबाउट.